Hello everyone, myself Srishti Thakre from Brijlal Biyani Science College, Amravati. Our topic is short answer type questions from chapter Respiration in Plants, subject Biology, class 11th. Short answer type questions. So the first question is, why is a person fed with glucose or a fruit juice instead of cheese sandwich that might give more energy when a person is feeling dizzy? So अगर किसी पेशेंट का या हम जैसे किसी इंसान को अगर जब उसे थकान महसूस हो रही हो तब हम उसे ग्लूकोज़ या फ्रूट जूस ही क्यों देते हैं, जबकि अगर कोई चीज़ सैंडविच रहा तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी दे सकता है. So answer is glucose gives instant energy as it is absorbed and reaches the blood. Cheese sandwich however requires time to digest and absorb. As sick people need an immediate energy supply, they are fed with glucose or given fruit juice. So जो ग्लूकोज होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है वो ग्लूकोज जल्दी एनर्जी इसलिए देता है क्योंकि वो जो ग्लूकोज होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है और ब्लड को जल्दी रीच हो जाता है, यानी कि ब्लड के पास जल्दी पहुंच जाता है. जबकि चीज़ सैंडविच जो होता है वो डाइजेस्ट होने के लिए टाइम लगाता है और एब्जॉर्ब होने के लिए भी टाइम लगाता है. और जो सिक पीपल होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं या उन थकान जिन लोगों को होती है, उन्हें इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उन्हें ग्लूकोज या फ्रूट जूस दिया जाता है. So question number second is, aerobic respiration has more efficiently justify. So in this process a single molecule of glucose can yield up to 36 ATP molecules. In anaerobic respiration or fermentation, there are only 2 molecules of ATP from every molecule of glucose, which in comparison is lesser than aerobic respiration. Hence, aerobic respiration is more efficient. So, एरोबिक रेस्पिरेशन ये ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है, हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है. सो इस एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वक्त क्या होता है कि जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो 36 ATP मॉलिक्यूल तैयार करता है, और जबकि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन हम जैसे कहें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ATP के तैयार होते हैं फ्रॉम हर एक मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 36 ATP मॉलिक्यूल तैयार करता है, लेकिन अनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ATP के तैयार करता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन का कंपैरिजन में बहुत कम है. इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट है. The final product of glycolysis is pyruvic acid. Write the 3 metabolic fates of the pyruvic acid in anaerobic and aerobic condition as seen in the diagram below. So the answer is lactic acid formed by oxidation of pyruvic acid in skeletal muscles under anaerobic conditions. Ethanol formed by oxidation of pyruvic acid under anaerobic condition in yeast, that is acetyl-CoA formed by the oxidation of pyruvic acid occurring within the mitochondria under aerobic condition. So लैक्टिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडेशन जब होता है पायरुविक एसिड का स्केलेटल मसल में अंडर एनारोबिक कंडीशन, तब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है. जो इथेनॉल होता है वो जब पायरुविक एसिड का एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट में या इसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तब इथेनॉल फॉर्म होता है. और जब पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है तब एसिटिल-CoA फॉर्म होता है. Question number 4 is anaerobic respiration is observed in entitled living such as human and angiosperm in aerobic condition. Why? So anaerobic respiration and living यह ऑब्जर्व होता है जैसे कि ह्यूमन और एंजियोस्पर्म इन एरोबिक कंडीशन. Why? So in normal conditions in human beings aerobic respiration takes place. In intense conditions such as heavy exercise, muscles require too much energy, ATP, hence consume more energy, which results in lack of oxygen, thereby causing the muscle cells to make lactic acid through anaerobic respiration to meet their energetic needs. Under deficient conditions of oxygen, these cells carry out anaerobic respiration to form ethyl alcohol and carbon dioxide. So, normal condition में ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट
कुछ इंटेंस कंडीशन आते हैं, जैसे कि हम कभी हेवी एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स उस वक्त क्या करता है कि उन्हें मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इसीलिए मसल्स में जो मसल सेल्स में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड तैयार होना शुरू हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन थ्रू, ताकि उनकी एनर्जी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। जब ऑक्सीजन कम होता है तब क्या होता है कि इससे जो क्या करते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट करते हैं, जो इथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। Question number 5 is state why the respiratory pathway is referred to as an amphiboolic pathway. So respiratory pathway को amphiboolic pathway भी एक तरीके से रेफ़र क्यों किया जाता है? So the answer is fatty acids and proteins are degraded to acetyl-CoA to enter the respiratory pathway. Substances are withdrawn from the respiratory pathway during the synthesis of fats and proteins and are used in anabolism. Formation of substances is called anabolism and breakdown of substances is known as catabolism. Since the respiratory pathway is responsible for both catabolism and anabolism, it is known as the amphiboolic pathway. सो फैटी एसिड और प्रोटीन जो होता है वो एसिटिल CoA में डिग्रेड हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करता है। जो सब्सटेंसेस रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ किए जाते हैं जब वो फैट्स और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तब उसमें से जो सब्सटेंस होते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में जब फैट्स और प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है, तब कुछ सब्सटेंस उसमें से विड्रॉन किए जाते हैं और उन्हें एनाबोलिज्म में यूज़ किया जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस का फॉर्मेशन को एनाबोलिज्म कहा जाता है और सब्सटेंस के ब्रेकडाउन को कैटाबोलिज्म। इसलिए जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैटाबोलिज्म के लिए भी और एनाबोलिज्म के लिए भी, इसीलिए उसे एक एम्फिबोलिक पाथवे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? So, mitochondria are known as the powerhouse of the cell because they play a vital role in releasing energy from the food molecules through a series enzyme reaction. So, mitochondria को power house cell का क्यों कहा जाता है? तो mitochondria को power house of the cell इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एनर्जी रिलीज़ करने में फूड मॉलिक्यूल्स के ज़रिए, यानी फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज़ करने में बहुत वो रोल प्ले करता है, जो कैरी आउट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शंस। Question number 7 is what is the end product of oxidative phosphorylation? So the end product of oxidative phosphorylation is ATP, that is adenosine triphosphate and water molecules. Question number 8 is explain the term energy currency of the cell. So हमें energy currency of cell ये term explain करनी है। ATP is called the energy currency of the cell. ATP को energy currency cell की energy currency कहा जाता है। ATP, that is adenosine triphosphate, is the organic compound composed of the phosphate groups adenine and the sugar ribose. These molecules provide energy for various biochemical processes in the body. Therefore, it is called energy currency of the cell. So, ATP यानी कि adenosine triphosphate ये एक phosphate groups phosphate group adenine और sugar ribose से बनाया हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये मॉलिक्यूल एक एनर्जी जो डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।